آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی ہائی لائٹس۔ ہانیہ کے کمرے میں 2 مہینے پہلے رکھا گیا تھا بم، IRGC کی نگرانی میں تھی عمارت۔ نیو یارک ٹائمز کا بڑا دعویٰ، ایران پر سازش کا شک جتایا۔ تہران میں سپریم کمانڈر علی خامنئی نے پڑھائی اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ، لاکھوں لوگوں نے دی آخری وداعی۔ ایران نے کھائی قسم، اسرائیل سے بدلہ لے کر ہی لیں گے دم، نیتن یاہو نے کہا ہر طرح سے ہیں تیار ہم۔ امریکہ نے اسرائیل کے آس پاس سمندر میں ڈالا ڈیرا، سورس کے مطابق US نیوی نے تعینات کیے 12 جنگی جہاز۔ حزب اللہ چیف حسن نصر اللہ کی اسرائیل کو وارننگ، کہا آج کی رات آرام سے سو جاؤ، کل کہاں سے ہوگا حملہ کوئی نہیں جانتا۔ اور غزہ میں جنگ کے 300 دن پورے، اب بھی جاری ہے قتل عام، خان یونس سے لوٹی IDF، 200 فلسطینی لاپتہ۔ آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد۔ آج 1 اگست 2024 ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں رات 10 بجے کا اسپیشل بلیٹن دنیا بھر کی خبریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے۔ غزہ میں آج اسرائیلی حملے کے 300 دن پورے ہو گئے ہیں۔ آج غزہ کی ہیلتھ منسٹری نے ڈیلی بریفنگ کے دوران بتایا کہ غزہ میں پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل کے حملوں میں 35 لوگوں کی موت ہو گئی اور 55 لوگ زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری جنگ میں شہید ہوئے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 39,480 ہو چکی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد بڑھ کر 91,128 تک جا پہنچی ہے۔ یہ فگرز یا آنکڑے ان لوگوں کے ہیں جو اسپتالوں تک لائے جا سکے ہیں اور جن کے ریکارڈز بھی ہسپتالوں میں درج ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے ہزاروں لوگ ہوں گے جن کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اگیات سنکھیا یعنی ان نون فگرز میں جو لوگ ہیں، جو متاثرین ہیں، ان میں ابھی نہ جانے کتنے لاپتہ ہیں، کتنے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، وہ زندہ ہیں یا نہیں کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اسرائیلی ملٹری، اسرائیلی فورسز وہاں راستوں میں کھڑی ہیں، ایمبولینس اور سول ڈیفنس کریوز ان تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ بڑھتے آگے، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے تہران میں حماس کے چیف اسماعیل ہانیہ کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ اس دوران ہانیہ کا تابوت سامنے دیکھ کر خامنئی رو پڑے۔ اس کے بعد جنازے کو تہران کے آزادی اسکوائر پر لے جایا گیا، جہاں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوئے ایرانیوں نے ہانیہ کے آخری سفر میں حاضری دی۔ ہانیہ کو قطر کی دارالحکومت دوحہ میں دفنایا جائے گا۔ سپریم کمانڈر خامنئی نے ہانیہ کو شہید بتاتے ہوئے ان کے قتل کا بدلہ لینے کو ایران کا فرض بتایا۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی مجرم ہے اور جو ٹیررسٹ ہے یعنی کہ دہشت گرد ہے، وہ زائنی حکومت ہے اور اس نے اپنے لیے سزا کا بیس تیار کر لیا ہے۔ اس نے ہمارے پیارے مہمان ہانیہ کی ہماری زمین پر قتل کر دیا انہیں، اس کا بدلہ لینا اب ہمارا فرض ہے۔ ایران کے ریولوشنری گارڈز نے بھی اسرائیل کو ٹھوس، دردناک اور خطرناک جواب دینے کی وارننگ دی ہے۔ حماس کے چیف اسماعیل ہانیہ کی بدھ کے روز 31 جولائی کو تہران میں ایک ایئر سٹرائک میں موت ہو گئی۔ سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ وہ ہانیہ کی موت کا بدلہ لیں گے، اسرائیل پر سیدھا حملہ کریں گے۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اپنے پورے دیش کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے لیے آنے والے دن مشکل بھرے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ہر ایک خطرے کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ دونوں کے بیچ جنگ چھڑنے کے آثار دیکھ امریکہ بھی الرٹ ہو گیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیل کو بچانے کے لیے اور مڈل ایسٹ میں بڑھتی ٹینشنز کو روکنے کے لیے امریکہ نے اپنے 12 جنگی جہاز اسرائیل کے آس پاس کے سمندر میں تعینات کر دیے ہیں۔ دوسری طرف ایرانی آفیشلز آج لبنان، عراق اور یمن کے آفیشلز سے ملاقات کریں گے۔ نیوز ایجنسیز کے مطابق اس دوران سبھی مل کر اسرائیل پر ریٹیلیٹ کرنے، پلٹوار کرنے، بڑا حملہ کرنے کو لے کر بات چیت کریں گے، ایک بلو پرنٹ تیار کریں گے۔ بڑھتے ہیں آگے، حزب اللہ کے موسٹ وانٹڈ سینئر کمانڈر فواد شکر اور حماس کے چیف اسماعیل ہانیہ کی موت کے بعد سے اسرائیل کے خلاف جنگ کے آثار زور پکڑ رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل یعنی کہ UNSC نے بڑھتی ٹینشنز کے بیچ مڈل ایسٹ میں امن بنائے رکھنے کے لیے ڈپلومیٹک کوششیں تیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ UNSC نے مڈل ایسٹ میں بڑھ رہے ٹینشنز پر چرچا کرنے کے لیے ایک ایمرجنسی بیٹھک بلائی۔ UNSC کے ممبر ملک کو، تمام جو ممبر ممالک ہیں، ان کو ڈر ہے، خدشہ ہے کہ ایران کے اسرائیل پر حملہ کرتے ہی اس پورے مڈل ایسٹ ریجن میں ایک وار چھڑ جائے گی جس سے حالات بگڑ سکتے ہیں۔ ساتھیوں، اسرائیل کی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کے حملے میں حماس کے نمبر 2 اور ملٹری چیف محمد دائف کی موت ہو گئی ہے۔ IDF نے بتایا کہ غزہ کے خان یونس میں 13 جولائی کو اسرائیل کی فائٹر جیٹس نے حملہ کیا تھا جس میں محمد دائف کی موت ہو گئی تھی، لیکن تب سے لے کر
हमास ने आज 1 अगस्त तक इस बात को छुपाया था, लेकिन आज आईडीएफ ने क्लियर कर दिया कि हमने मोहम्मद दैफ को मार दिया है। मोहम्मद दैफ की मौत से हमास को बड़ा झटका लगा है। हानिया के बाद हमास के ताकतवर लोगों में मोहम्मद दैफ और याहिया सिनवार का ही नंबर आता था। दैफ 2002 से हमास के मिलिट्री विंग के हेड थे। वो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड माने जाते थे। आप चाहें तो पीछे जाकर मोहम्मद दैफ के असैसिनेशन पर पूरा हमने एक एपिसोड बनाया है, जो इससे जस्ट पहले वाला है। उसे आप जाकर और भी डिटेल्स और मोहम्मद दैफ के बारे में जान सकते हैं और कैसे इजराइल ने इस असैसिनेशन को अंजाम दिया वो भी समझ सकते हैं। बढ़ते आगे, अब बात इस्माइल हानिया के कत्ल से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली बड़ी खबर और बड़ी जानकारी से जुड़ी हुई आपके सामने रखने जा रहा हूं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हानिया की मौत किसी मिसाइल हमले में नहीं हुई, बल्कि उनके कमरे में बहुत खतरनाक बम प्लांट किए गए थे और ये बम कई महीनों पहले ही उस बिल्डिंग में स्मगलिंग करके लाए जा चुके थे, जिस बिल्डिंग के एक कमरे में हानिया को 31 जुलाई को ठहरना था। इसी कमरे में हुए ब्लास्ट में हानिया की मौत हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट आप देखते रहिए। ये रिपोर्ट सीधे सीधे हानिया की मौत के पीछे की साजिश को ईरान से जोड़ रही है कि ईरान के इशारे पर यह सब कुछ हुआ है, क्योंकि ये इमारत IRGC यानी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जेरे निगरानी थी। सारे इंतजाम उसके पास थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर किस बिना पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है, जरा उसे भी समझ लेते हैं। खबर में जैसे लिखा है हू बहू लफ्ज ब लफ्ज वही हर बहर वही पढ़ने जा रहा हूं, एक भी बात इधर उधर नहीं। लिखा है 2 ईरानियों और 1 अमेरिकी ऑफिशियल समेत मिडिल ईस्ट के 7 ऑफिशियल्स के मुताबिक हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया की बुध को तेहरान के गेस्ट हाउस में जहां वो ठहरे हुए थे, गुप्त रूप से सीक्रेट तरीके से तस्करी कर लाए गए एक विस्फोटक उपकरण यानी कि एक्सप्लोसिव डिवाइस से हत्या कर दी गई, कत्ल कर दिया गया। आप समझिए, मिडिल ईस्ट इन समेत ये जो मिडिल ईस्ट के ऑफिशियल्स थे, इनमें से 5 ऑफिशियल्स के मुताबिक बम लगभग 2 महीने पहले गेस्ट हाउस में छिपाया गया था। गेस्ट हाउस इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की निगरानी में रहता है और ये नॉर्थ तेहरान के एक इलाके में निशात नाम के एक बड़े कंपाउंड का हिस्सा है। 5 ऑफिशियल्स ने कहा कि बम को दूर से विस्फोट किया गया, यानी रिमोटली डेटोनेट किया गया था। ब्लास्ट के वक्त हानिया अपने कमरे में ही मौजूद थे। इस ब्लास्ट में उनके एक बॉडीगार्ड की भी उनके साथ मौत हो गई। ब्लास्ट के बाद रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के मेंबर्स ने इस पूरे इंसिडेंट की इत्तला दी। 2 ईरानी ऑफिशियल्स के मुताबिक ब्लास्ट से इमारत पूरी तरह हिल गई, कुछ खिड़कियां टूट गईं और बाहरी दीवार मामूली रूप से ढह गई। न्यूयॉर्क टाइम के पास जो उस बिल्डिंग की तस्वीर है, उसमें भी ऐसा दिखता है कि इसको नुकसान पहुंचा है। मिडिल ईस्ट के ऑफिशियल्स के मुताबिक हानिया अपनी तेहरान विजिट के दौरान इस गेस्ट हाउस में कई बार रुके थे। इन सभी ऑफिशियल्स ने अपना नाम न छापने की शर्त पर इस कत्ल के बारे में कई सेंसिटिव डिटेल्स साझा की हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ। अब वो मिडिल ईस्ट कौन कौन से मिडिल ईस्ट के मुल्क के ऑफिशियल्स थे, ये भी समझना और जानना तो जरूरी होगा, ये बताया नहीं गया। दोस्तों, अब चूंकि रिपोर्ट अमेरिका से आई है, अमेरिका और इजराइल दोस्त हैं, दोनों का दुश्मन ईरान है। ईरान में हानिया का कत्ल हुआ है, ईरान ने बदले का ऐलान किया है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि ये रिपोर्ट ईरान और उससे हमदर्दी रखने वालों के बीच फूट डाल दे। यह भी हो सकता है कि इस रिपोर्ट का मकसद यही हो या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यह तो तय है कि ईरान में किसी की गद्दारी के किए बिना एक हाई प्रोफाइल शख्स का एक हाई सिक्योरिटी जोन में यह सब कुछ हो जाना मुमकिन तो नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ईरान जल्द ही सबूत पेश कर दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। तब तक मुझे लगता है इस रिपोर्ट को बेस बनाकर इजराइल बहुत देर तक ये कह सकता है कि मैंने ये सब नहीं किया। आप याद रखिएगा कि इजराइल में अभी बहुत खौफ है। मैं बिल्कुल खुली जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि इतना जो सब कुछ हो गया है उसके बाद भी इजराइल ने इस बात को कबूल नहीं किया है कि इस्माइल हानिया के कत्ल में उसका हाथ है। इनकार भी नहीं किया है। उसे जो क्रेडिट मिल रहा है उसमें भी वो खुश है, लेकिन उसे कबूल भी नहीं कर रहा है, वरना फिर तो सबके लिए लीगल हो जाएगा। दुनिया कह रही है, लेकिन इजराइल ने अभी तक कबूल नहीं किया कि यस वी डिड इट। घबराहट है। चलिए 1-2 खबरें स्क्रीन से डायरेक्ट हो जाएं। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह ने अभी शाम में बयान दिया है, क्योंकि उनके एक कमांडर मारे गए थे बेरूत में परसों। तो हिजबुल्लाह के कमांडर ने कहा है, हसन नसरल्लाह ने कहा है कि भाई ऐसा है कि अब हम हमले करेंगे।
दे स्टार्टेड अ प्रॉब्लम विद एवरीवन, कि उन्होंने सबके साथ दिक्कतें शुरू की। वो नहीं जानते हैं अब कि कहां से जवाब आएगा, और ये कहा कि वो नॉर्थ से भी आ सकता है, नॉर्दर्न फिलिस्तीन से भी आ सकता है, और ईस्टर्न फिलिस्तीन से भी आ सकता है, और सदर्न फिलिस्तीन से भी आ सकता है, कहीं से भी। मतलब ये पूरे इजराइल के जो कब्जाए हुए इलाके उन्हें फिलिस्तीन ही बुलाते हैं। यानी ये कह रहे हैं अब कहीं से भी जवाब आ सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी इसे हेडलाइन बनाया है और इसके बारे में कहा है। हम लोग सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं किसी वीडियो के भी, उसकी आप मजबूरी समझते हैं। नसरल्ला ने कहा है फाइटिंग विल इंटेंसिफाई ऑन द बॉर्डर टुमारो, कि कल से तैयार हो जाओ, कल से जंग तेज होने वाली है, हसन नसरल्ला ने इजराइल से कह दिया है। अच्छा, मैं एक और जो है ईरान के एक ऑफिशियल हैं, कालीबाफ, आपको पता ही है, ये वहाँ की जो पार्लियामेंट हैं उसके हेड हैं, स्पीकर हैं, मोहम्मद बागेर कालीबाफ। इन्होंने ये कहा है कि ईरान जवाब देगा, हानिया के कत्ल का बदला लेगा, उसका वक्त और जगह बिल्कुल तय कर ली जाएगी, तब ये सब कुछ अंजाम दिया जाएगा। 200 फिलिस्तीनी लापता हैं, मिडिल ईस्ट मॉनिटर की हेडलाइन है, और खान यूनिस में ये सब लोग लापता हैं। जब इजराइल की फौज वहां से निकल गई अपना मिशन अंजाम देने के बाद, तब से इन फिलिस्तीनियों की, 200 फिलिस्तीनियों की कोई खबर नहीं है। और आपको बता दूं कि जर्नलिस्ट जो हैं गजा में, वो लगातार मारे जा रहे हैं। कल 2 अल जजीरा के जर्नलिस्ट मारे गए। आज सभी ने अपनी वर्दी से प्रेस का बैज उतार कर रख दिया, बोले ये हमारी हिफाजत नहीं कर सकता, हम ये पहन रहे हैं, उसके बावजूद मारे जा रहे हैं, तो ये प्रेस लिखने की क्या जरूरत है, हम वैसे भी मारे जाएंगे, ऐसे भी मारे जाएंगे। दुनिया भर की खबरें, ये शो आज आपके लिए हम लेकर आए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और ये हमारा QR कोड है, आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।